Hello future doctors, welcome to NEET Ultimatum. Here we are working to achieve the dreams. Today we are going to start lecture 08 of biological classification and our topic is fungi. So without wasting a single minute, let's start today's class. Okay, now comes Basidiomycetes, right? Our topic is fungi, right? And now we are going to have a quick glance, detailed glance about Basidiomycetes. Okay, so please focus here. Basidiomycetes habitat, where you can find Basidiomycetes. They grow in soil, logs and tree stumps. So in soil, logs and tree stumps आपको क्या मिलेगा? Basidiomycetes मिलेगा. तो देखिए आप लोग अगर यहाँ पर फोकस्ड रहोगे, then if you go through the NCERT, then you will find each and everything to be so easy, like a piece of cake. So now here goes for structure, that is septate and branched. Septate, see septate and branched. Nutrition is parasitic, saprophytic and symbiotic. आपको Basidiomycetes में तीन भी न्यूट्रिशन मिलेंगे, दैट इज पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक एंड सिम्बियोटिक. अब आप लोग जल्दी से मुझे बताएं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है एंड सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन क्या होता है. ओके, प्लीज से मी डाउन. So Basidiomycetes habitat, they grow in soil, logs and tree stumps, right? Then structure is septate and branched. Nutrition is parasitic, saprophytic and symbiotic. It is the nutrition, habitat and structure of Basidiomycetes. Do you remember about Phyco and Ascomycetes? Where do you find Phyco and Asco? The structure, the nutrition. Please recall. If you will recall, अगर आप लोग recall करोगे, then आपको when you correlate the topics, then only आपको अच्छे से याद होगा. So now the next slide is here, that is reproduction. The topic, that is Basidiomycetes. Under the heading Basidiomycetes we are going to deal about reproduction. First आपको कितने types of reproduction मिलेंगे Basidiomycetes में? That is vegetative reproduction, asexual and sexual, right? देखिए, see first have it, I am saying asexual but yes it is absent, but आप लोग देखिए मैं कैसे आप लोग को समझा रही हूँ. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में इट इज फ्रैगमेंटेशन, राइट? व्हाट इज फ्रैगमेंटेशन? जल्दी से आप लोग आंसर करोगे. एसेक्सुअल स्पोर यहाँ पर एब्सेंट होते हैं. वेरी गुड, दैट इज एसेक्सुअल स्पोर आप लोग का यहाँ पर एब्सेंट होते हैं. इन विच, यस, इन, बोलिए, Basidiomycetes, right? हाँ, asexual spore is absent in Basidiomycetes. Then sexual spore, what about sexual spore? Sexual organ absent होते हैं, but sexual spore देखिए, gamete formation absent, somatic hyphae fuse. यहाँ पर आपको sex organ absent हो गए, gamete formation भी absent हो गए, somatic hyphae यहाँ पर fuse करेंगे. So देखिए, reproduction vegetative through fragmentation. asexual spore तो absent हो गए, sexual spore, sex organ absent है, gamete formation भी आपको absent होगा and somatic hyphae fuse होगा. So let's just have a quick glance about the basic things in Basidiomycetes, that is habitat. They grow in soil, logs and tree stumps, right? Then structure क्या है यहाँ पर? Septate and branched. Nutrition parasitic, saprophytic and symbiotic. Yes, very good. Now comes is reproduction. How many types? Yes, vegetative, fragmentation. Asexual spore are absent, note it down. Sexual spore, gamete formation absent है, sex organ भी absent हो गए. Then somatic hyphae यहाँ पर fuse करेंगे, ठीक है? Okay, now comes his sexual reproduction in Basidiomycetes. Let's just have a quick glance and detailed one as well. See, we have seen that somatic hyphae fuse, right? Because यहाँ पर sex organ absent है and gamete formation भी absent है. देखिए यहाँ पर somatic hyphae fuse हो रहे हैं. हमने कहाँ पढ़ा था ये? NCERT में. Even we have read in NCERT, detail explanation भी हमने कर चुका कि थोड़े cases में hyphae fuse होंगे, right? देखिए, here comes the case, हाइफे फ्यूज हो रहे हैं. डाइकैरियोटिक हाइफे, यहाँ पर इसका फेज क्या है? दैट इज इट इज हैप्लॉइड, राइट? देन यहाँ पर देखिए इन दोनों फ्यूज होकर डाइकैरियोटिक हाइफे, दैट इज N+N. डाइकैरियोटिक हाइफे है. डाइकैरियोन कंडीशन क्या होती है? लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पर? डाइकैरियोटिक हाइफे, राइट? N+N. अब यहाँ पर आपको क्या होनी चाहिए थी? कैरियोगेमी हो जानी चाहिए थी, राइट? कैरियोगेमी, प्लाज्मिक, बट यहाँ पर क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है. नो कैरियोगेमी अकर्स. यहाँ पर माइसीलियम फॉर्म हो गया. N+N ही है कंडीशन, राइट? यहाँ पर न्यूक्लियस स्प्लिट नहीं हो रहा है. नो कैरियोगेमी अकर्स. यहाँ पर N+N ही है सिचुएशन, बट माइसीलियम फॉर्म हो गया. देन यहाँ पर देखिए बेसिडियो कार्प फॉर्म हो गया. N+N ही है यहाँ पर सिचुएशन फिर से. देन यहाँ पर बेसिडियम फॉर्म हो गया. सेम N+N सिचुएशन. ये बेसिडियम है, राइट? दिस इज बेसिडियम, राइट?
देखिए कैरियोगेमी एंड मियोसिस अकर्स ऑन बेसिडियम, ये बेसिडियम के ऊपर ये जो स्पोर्स टाइप है इसमें ही आपको कैरियोगेमी होगी एंड मियोसिस भी होगी। 2n कंडीशन यहाँ पर आएगी क्योंकि यहाँ पर कैरियोगेमी एंड मियोसिस होगी। देन मियोसिस होके यहाँ पर स्पोर फॉर्म हो जाएंगे। प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस एक्सोजीनस बेसिडियोस्पोर्स। एक्सोजीनस क्यों, जल्दी से आप लोग बताओगे मुझे, जल्दी से। एक्सोजीनस देखिए फर्स्ट यहाँ पर n+n सिचुएशन हो रहा था क्योंकि यहाँ पर हमें डिलेड कैरियोगेमी मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर कैरियोगेमी नहीं हो रहा है, दैट इज द रीज़न वी डिड नॉट गेट 2n कंडीशन, इसीलिए यहाँ पर n+n ही था। देखिए यहाँ पर भी n+n। देन बेसिडियम के ऊपर आपको होगा कैरियोगेमी एंड मियोसिस बोथ अकर्स इन बेसिडियम। देन कैरियोगेमी से आपको 2n सिचुएशन आ गई, देन मियोसिस होकर आपको एक्सोजीनस बेसिडियोस्पोर्स मिलेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस क्या है, स्पोर्स, बट यहाँ पर एक्सोजीनस। व्हाई आई एम सेइंग एक्सोजीनस, व्हाई आई एम नॉट सेइंग एंडोजीनस, जल्दी से आंसर करोगे आप लोग। लेट्स हैव अ क्विक ग्लांस। देखिए ये इससे ये चार्ट से भी आप लोग को अच्छे से समझ आएगा। देखिए हाइफे फ्यूज हो रहे हैं, राइट। देन यहाँ पर प्लाज्मोगेमी हो रही, राइट, यस और नो, यस, हाइफे फ्यूज हो रहे हैं, प्लाज्मोगेमी अकरिंग, डाइकैरियोटिक हाइफे, दैट इज n+n कंडीशन। बट यहाँ पर हमें कैरियोगेमी नहीं दिखी, हमें डिलेड कैरियोगेमी दिख रही। देखिए माइसीलियम फॉर्म हो गया, n+n सिचुएशन है। देन बेसिडियो कार्प फ्रूटिंग बॉडी भी फॉर्म हो गई, सेम n+n कंडीशन, क्योंकि यहाँ पर कैरियोगेमी नहीं हुई, प्लाज्मोगेमी हो चुकी है। देखिए डिलेड कैरियोगेमी हमें बेसिडियम पर हो रही है, n+n कंडीशन था, बेसिडियम पर डिलेड कैरियोगेमी होकर हमें 2n कंडीशन आई। देन फिर हमें मियोसिस भी बेसिडियम पर होकर हमें क्या मिला, एक्सोजीनस बेसिडियोस्पोर्स। देन दिस स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म हाइफे, दिस इज इट, राइट। देखिए 2 हाइफेज दे आर फ्यूजिंग, दैट इज प्लाज्मोगेमी, राइट। देन यहाँ पर हमें डाइकैरियोटिक हाइफे n+n कंडीशन मिला, यहाँ तक तो नॉर्मल था, बट यहाँ पर हमें कैरियोगेमी नहीं मिल रही थी। देखिए माइसीलियम फॉर्म हो गया, सेम n+n। देन बेसिडियो कार्प फ्रूटिंग बॉडी n+n कंडीशन में फॉर्म हो चुकी। बेसिडियम पर हमें क्या मिला, n+n कंडीशन था, डिलेड कैरियोगेमी हुई, देन 2n कंडीशन आ गया। देन सेम ऑन बेसिडियम वी आर सीइंग मियोसिस एज वेल। मियोसिस का प्रोडक्ट क्या होता है, स्पोर्स, राइट, इसका नेम है बेसिडियोस्पोर्स एंड दे आर एक्सोजीनस। देन दीज स्पोर्स ऑन जर्मिनेशन दे गिव राइज टू हाइफे। ओके, क्या आप लोगों को अब अच्छे से समझ आ चुका है? नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर स्लाइड, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लेट्स फिगर आउट। सी इन फाइकोमाइसीटीज हाइफे एसेक्सुअल, राइट, एसेक्सुअल स्पोर एंडोजीनस, सेक्सुअल स्पोर एंडोजीनस, नो डाइकैरियन विजिबल। क्या हमें फाइकोमाइसीटीज में डाइकैरियन था? नहीं, नो, दिट वाज नॉट विजिबल। सी मिस्टेक इज, क्या आप लोग नोट कर रहे हैं मिस्टेक, इट इज एसेप्टेट, नॉट एसेक्सुअल, इट इज एसेप्टेट। सी फाइकोमाइसीटीज हाइफे एसेप्टेट, सिर्फ हमें फाइकोमाइसीटीज में आपको एसेप्टेट मिलेगा, बाकी के तीनों ग्रुप्स में आपको सेप्टेट मिलेगा, राइट। एंड यहाँ पर डाइकैरियन भी विजिबल नहीं होगा फाइकोमाइसीटीज में। देखिए सेक्सुअल स्पोर एंडोजीनस है, सेक्सुअल स्पोर भी एंडोजीनस, नो डाइकैरियन विजिबल। नाउ इन एस्कोमाइसीटीज हाइफे सेप्टेट, राइट, एसेक्सुअल स्पोर एक्सोजीनस, नेम क्या है उसका, कोनिडिया। सेक्सुअल स्पोर क्या है, एंडोजीनस, नेम क्या है, एस्कोस्पोर्स इज द नेम। सेक्सुअल स्पोर्स क्या है, एस्कोमाइसीटीज के एस्कोस्पोर्स। एसेक्सुअल स्पोर्स दे आर कोनिडिया एंड दे आर एक्सोजीनस। सेप्टेट हाइफे, आप लोगों को डायरेक्टली क्वेश्चंस मिल जाएंगे, प्लीज नोट डाउन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज। एंड बेसिडियोमाइसीटीज में अभी हम पढ़ के आ चुके हैं, हाइफे सेप्टेट, राइट। एसेक्सुअल स्पोर क्या थे, नो, एब्सेंट। देन सेक्सुअल स्पोर दे वर एक्सोजीनस, राइट, एंड दैट वाज बेसिडियोस्पोर। डिलेड कैरियोगेमी एंड मियोसिस इन बेसिडियम लीड्स राइज टू प्रोडक्शन ऑफ एक्सोजीनस एक्सोजीनस सेक्सुअल स्पोर, those are besidiospore, right, exogenous. ठीक है, let's have a quick glance at these, the most important slides I could say, because they are correlating all the groups that we have gone through. Phycomycetes, hyphae aseptate, hyphae is aseptate, right, hyphae is aseptate. Then now asexual spore, they are endogenous, sexual spore, they are endogenous, no dikaryon visible. Then in Ascomycetes, see hyphae is septate, right, asexual spore यहाँ पर exogenous है and they are conidia, sexual spore endogenous and they are ascospores. Now comes Basidiomycetes, hyphae septate, asexual spore क्या हमें दिखे थे, no, absent, and sexual spores were exogenous, that is Basidiospores, right. Now let's just move on to our next slide and it is here, Deuteromycetes. Now last group in fungi, that is Deuteromycetes.
टेम्पररी ग्रुप भी बोल सकते हैं हम इसको। क्यों बोल रहे हैं हम टेम्पररी ग्रुप? बिकॉज कुछ डिस्कवरीज होना बाकी है, राइट। सी टेम्पररी ग्रुप फॉर दोज फंगाई इन विच सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट डिस्कवर्ड। क्यों टेम्पररी है? क्योंकि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इसका डिस्कवर्ड नहीं हुआ है, दैट इज द रीजन वी आर टर्मिंग इट एज टेम्पररी। इन विच ग्रुप? दैट इज ड्यूटेरोमाइसीट्स, राइट। देन हैबिटेट देखेंगे हम, ग्रो ऑन डीकेइंग सब्सटेंसेस लाइक मिनरल रिसाइकलिंग में हेल्प करेगा। Which group? This Deuteromycetes helps in mineral recycling, grow on decaying substances. Structure, of course, septate, not able to place in Phycomycetes. अब देखें, अब हमें ड्यूटेरोमाइसिटीज में हमें अगर ड्यूटेरोमाइसिटीज को हमें प्लेस करना है, वी हैव 3 ग्रुप्स, राइट। विच ग्रुप्स वी हैव गॉन थ्रू? फाइकोमाइसिटीज इन विच हाइफे वाज एसेप्टेट, then ascomycetes in which hyphae was septate, and basidiomycetes in which hyphae was again septate. So अगर हमें ड्यूटेरोमाइसिटीज दैट इज इट इज टेम्पररी ग्रुप, राइट, बिकॉज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन तो डिस्कवर्ड नहीं हुआ है। अगर हम इसको कौन से भी अगर ये 3 ग्रुप में से इन अमॉन्ग 3 ग्रुप्स इफ वी हैव टू प्लेस द ड्यूटेरोमाइसिटीज इन 3 ग्रुप्स, देन हम किस में प्लेस कर सकते हैं? देखिए, अगर हमें फाइकोमाइसिटीज में प्लेस करना है, बट यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर इसका सेपरेट है, बट इन फाइकोमाइसिटीज द स्ट्रक्चर ऑफ हाइफे इज एसेप्टेट, बिकॉज ऑफ दैट रीजन वी कैन नॉट प्लेस ड्यूटेरोमाइसिटीज अंडर द ग्रुप हाइफे, सॉरी फाइकोमाइसिटीज, बिकॉज ऑफ द रीजन दैट हियर इन ड्यूटेरोमाइसिटीज what is it? That is substrate hyphae मिलेगा आपको, बट इन फाइकोमाइसिटीज ए सबस्ट्रेट, राइट। दैट इज द रीजन वी कैन नॉट प्लेस ड्यूटेरोमाइसिटीज अंडर द हेडिंग फाइकोमाइसिटीज। आपको अगर प्लेस करना है एस्को या फिर बेसिडियो में ही आपको लुकअप करना होगा। देखिए स्ट्रक्चर सेपरेट, इसीलिए दैट नॉट एबल टू प्लेस इन फाइकोमाइसिटीज। सी न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक एंड सैप्रोफाइटिक, ओके। ड्यूटेरोमाइसिटीज टेम्पररी ग्रुप फॉर दोज फंगाई इन विच सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जिसमें डिस्कवर नहीं हो चुका, ग्रोन डिकेइंग सब्सटेंस हेल्प्स इन मिनरल रिसाइकलिंग, राइट। स्ट्रक्चर देखिए सेपरेट है, दैट इज द रीजन वी आर नॉट प्लेसिंग इट इन फाइकोमाइसिटीज। न्यूट्रिशन देखिए पैरासाइटिक एंड सैप्रोफाइटिक, ओके। नाउ रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन, कोनिडिया फॉर्मेशन, ड्यू टू कोनिडिया मोर चांसेस इज दैट दे विल बी। देखिए आपको कोनिडिया से क्या याद आया? फर्स्ट फ्रैगमेंटेशन इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, राइट। देन सेक्सुअल एसेक्सुअल, हमें अभी पढ़ चुके कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इट इज नॉट डिस्कवर्ड इन द हेडिंग ड्यूटेरोमाइसिटीज। नाउ कम्स इज एसेक्सुअल यहाँ पर आपको कोनिडिया दिखा, कोनिडिया से आपको क्या याद आया? हम कुछ पढ़ चुके ऐसा लग रहा है, राइट। कोनिडिया नेम वी हैव गॉन थ्रू वंस बिफोर सीइंग दिस स्लाइड, राइट। व्हेन डिड वी सी इट? यस, ड्यूरिंग एस्कोमाइसिटीज वी हैव सीन दैट asexual spores were conidia and sexual spores were ascospores. Yes or no? Asexual spores they were conidia and sexual spores were ascospores for the heading ascomycetes. Now आपको फिर से यहाँ पर कोनिडिया लग रहा है, दैट मीन्स दे आर एसेक्सुअल। सो देखिए कोनिडिया फॉर्मेशन हो रहा है, ड्यू टू कोनिडिया मोर चांस इज दैट दे विल बी प्लेस अंडर द हेडिंग एस्कोमाइसिटीज, राइट। इसीलिए हम इसको ज़्यादातर एज पहले तो फाइको कट हो चुका है ड्यू टू द सेपरेट एंड एसेप्टेट वाला, यू नो, ड्यू टू एसेप्टेट एंड सेपरेट वाला पंगे की तरफ से वी कैन नॉट प्लेस इन फाइकोमाइसिटीज। नाउ कम्स इज हमारा एस्को है एंड बेसिडियो है, इन अमॉन्ग बोथ ऑफ देम इन विच वी प्रेफर मोर बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया। वहाँ पर भी एसेक्सुअल स्पोर्स फॉर कोनिडिया एंड यहाँ पर भी कोनिडिया फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। मोर सिमिलैरिटी, राइट। जहाँ पर सिमिलैरिटी होगी वहाँ पर एडजस्टमेंट होगी, वहाँ पर अच्छे से कंफर्ट होगा, राइट। तो हम 2 ग्रुप्स को वहाँ पर ही प्लेस करेंगे, राइट। अगर आप हो ए, अगर आप हो बी, अगर दोनों में लड़ाई है वी कैन नॉट प्लेस, राइट। अगर यू बोथ हैव गुड अंडरस्टैंडिंग दैट ओनली वी कैन, यू बोथ हैव सिमिलैरिटी देन ओनली वी कैन प्लेस यू बोथ इन अ रूम, दैट इज इट। यहाँ पर भी सेम है बिकॉज एस्कोमाइसिटीज में भी आपको मिले थे कोनिडिया, दे वर एसेक्सुअल स्पोर। यहाँ ड्यूटेरो में भी यू वर फाइंडिंग कोनिडिया फॉर्मेशन, similarities there or not, so that is the reason if we are placing Deuteromycetes then we will prefer more Ascomycetes. Very good. Now the next and the last slide is here. See, perfect imperfect किसको बोलते हैं हम? देखिए perfect किसको बोलेंगे हम? सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी को। इम्परफेक्ट किसको बोलेंगे हम? एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी को हम बोलेंगे इम्परफेक्ट। अब देखिए परफेक्ट सेक्सुअल, इम्परफेक्ट एसेक्सुअल को बोलेंगे हम। इन ड्यूटेरोमाइसिटीज ओनली इम्परफेक्ट स्टेजेस विजिबल, इसीलिए एनसीईआरटी का लाइन ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देगा स्टूडेंट्स को। दैट इज द रीजन वी आर गोइंग थ्रू अ डिटेल्ड वन। परफेक्ट सेक्सुअल को बोलेंगे, फ्रूटिंग बॉडी को बोलेंगे, इम्परफेक्ट एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी को बोलेंगे। एंड इन ड्यूटेरोमाइसिटीज ओनली इम्परफेक्ट स्टेजेस विजिबल बिकॉज सेक्सुअल स्टेजेस दे आर नॉट डिस्कवर्ड येट, दैट इज द रीजन इट इज temporary group, right?
So देखिए, in deuteromycetes only imperfect, that is asexual stages is visible. That is the reason in deuteromycetes only imperfect stage is visible. That is it, right? Imperfect किसको बोल रहे हैं? Asexual fruiting body formation के हम बोल रहे हैं. That is imperfect, that is asexual, right? So with this we have completed today's class. Yes, it's a short and sweet class. Please have a quick glance. यहाँ पर आप देखिए ये 7th and 8th slide, it's most important. Please have a glance and everything is important. Please note down. आप लोग NCERT पढ़े and क्वेश्चन सॉल्व करिए. टिल देन हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपको, ठीक है? सो प्लीज़ डोंट थिंक कि यहाँ पर बहुत ओवर एग्जैजरेशन हो जा रहा है. देन लॉन्ग एंड लेंथी क्लासेस आई एम ट्राइंग टू डू छोटे छोटे क्लासेस सो दैट यू पीपल कैन गो थ्रू ईजिली. एंड आप लोग थोड़ी सी स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हो बिकॉज इट्स यूट्यूब वीडियो. यू पीपल कैन थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर देख सकते हो आप लोग 1.5 लाइक दैट. अगर आप लोग अच्छे नॉर्मल स्पीड पे देख रहे हो, इट्स वेल एंड गुड. It's very good, I would say. So till then, take care of yourself and your family. Goodbye. Yes, future doctors, why we are here? कहाँ चले भाई? Yes, we are here and we are working to achieve the dreams. Till then, take care of yourself and your family. Goodbye.